Hi everyone. So as you all know, the SIDB Grade A and Grade B notification has been released, and there are a lot of confusions regarding the eligibility for these two examinations, SIDB Grade A and SIDB Grade B. So I can guarantee you, after watching this 10 minutes video, you will have no doubts regarding your eligibility. ठीक है, तो मैं एक एक करके ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों की एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बताऊंगा. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके सारे डाउट्स जो है रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी shall be cleared, shall be clarified. All right. So let's start the video without any delay. We'll first talk about the eligibility criteria of assistant manager grade A. I'm not going to talk about the age eligibility because that is very directly mentioned in the notification. I believe that you have read that. I will only talk about the educational qualification, right? So my dear friends, for in educational qualification for grade A, right? If we talk about grade A, there are four different types of educational qualification, which means there are four different categories of students which are eligible for this examination. Number one, are those who are graduated in commerce or economics or mathematics or statistics or business administration or engineering with minimum 60% of marks. Now here please remember, a lot of people will say that I had done BSc program or maybe BSc physics with mathematics as one of the subjects. No, you are not eligible, my dear friend, in that case, because they have specifically mentioned that you need complete graduation in mathematics, which means the course must be BSc mathematics or BA mathematics or BCom mathematics, whatever your university offers. Similarly, same is the case with statistics. Now स्टैटिस्टिक्स जो है वो ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया है, तो आई हैड स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट, बट आई एम नॉट एलिजिबल. व्हाई? बिकॉज आई नीड कंप्लीट बीएससी और कंप्लीट ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, सब्सिडरी सब्जेक्ट अगर आपका है, सो यू आर नॉट एलिजिबल. So you need to be complete graduated in either commerce or economics or mathematics or statistics or business administration, which means BBA, Bachelor of Business Administration, or engineering. इंजीनियरिंग में बीई बीटेक दोनों चलेंगे. इंजीनियरिंग में ऑफ कोर्स बीई बीटेक दोनों चलेंगे. एंड मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स दैट इज रिक्वायर्ड इज 60% in case of unreserved candidates, while if it is a case of SC ST or PWBD candidates, the minimum percentage marks required is 50%, which means for UR, OBC and EWS, all these three category of people need 60% marks in their graduation. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. दूसरे कैटेगरी के लोग वो हैं जिन्होंने CS किया हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CMA या फिर CFA. इसमें ऑफ कोर्स देयर इज नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड. इसमें कोई मिनिमम परसेंटेज की कोई जरूरत नहीं है, राइट? तीसरे कैटेगरी के लोग वो हैं जो कि एलिजिबल हैं जिन्होंने CA किया हुआ है, और चौथे वो हैं जिन्होंने MBA किया हुआ है या फिर PGDM किया हुआ है इन एनी डिसिप्लिन, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, डू रिमेंबर, MBA तो देखो 2 साल का ही होता है. MBA तो 2 साल का होता ही है, लेकिन द पीपल हु हैव डन PGDM, देयर कोर्स मस्ट बी ऑफ फुल फुल टाइम, यानी कि 2 साल का पूरा आपका PGDM होना चाहिए. आपका डिप्लोमा अगर 1 साल का है, if your diploma is for the duration of 1 year, then you are not eligible, right? then you are not eligible. तो इन चार में से कहीं पे भी आप स्टैंड करते हैं, then you are eligible. और जबरदस्ती अपने आप को एलिजिबल कराने की कोशिश नहीं करनी है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया. If you have mathematics as one of the subject, you are not eligible. You need to be graduated in complete mathematics, BSc mathematics होना चाहिए, कॉमर्स में पूरा होना चाहिए. If you have economics as one of the subjects, अब मैंने BSc फिजिक्स ऑनर्स किया था, मेरे पास इकोनॉमिक्स भी था एक सब्जेक्ट 3rd ईयर में, so I can't say that I am eligible, right? Because economics as one of the subject नहीं लिखा है. They have specifically mentioned complete graduation in economics, which means BA economics आपके पास होना चाहिए. BA economics आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना, तभी होगा. यहाँ पे CS, CMA या फिर CFA चलेगा, या फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो CA और MBA या फिर PGDM. और PGDM ध्यान रखना है कि 2 साल कंप्लीट होने चाहिए, 1 साल का PGDM will not work. ठीक है, I hope it is clear. The very important fact which most of the regulatory bodies do not have this provision: the candidates appearing in the final year are also eligible to apply, provided they shall be required to submit the final mark sheet and provisional or final post graduation degree certificate in original at the time of joining. ठीक है, यानी कि if you are in the final year, you are eligible provided that you need to provide the final mark sheet or the provisional or final certificate of passing at the time of joining if you are selected.
ठीक है। लेकिन लेकिन ये वाला जो क्राइटेरिया है ये केवल इन दोनों के लिए ही वैलिड होगा, सीए और एमबीए के लिए। सीए और एमबीए के लिए ही वैलिड होगा। ये क्यों होगा मैं बताता हूं। क्योंकि जो पहले वाले दोनों है यानी कि ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग और कंपनी सेक्रेटरी, सीएफए और सीएमए, इनके लिए माय डियर फ्रेंड्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इनके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। लेकिन जो सीए और एमबी और पीजीडीएम है, इनके लिए इफ यू आर फ्रेशर देन यू कैन अप्लाई। एंड सिंस फ्रेशर्स के लिए अलाउड है तो जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप देयर आर नो कंफ्यूजन। ठीक है, इट्स वेरी क्लियर। देखो इन दोनों के लिए, पहले दोनों के लिए, इन दोनों के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इसका मतलब ऑफ कोर्स आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली होगी या सीएस, सीएफए या सीएमए कंप्लीट कर लिया होगा, तभी तो आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, राइट। यानी कि इस केस में फाइनल ईयर वाली जो प्रोविजन है वो वैलिड नहीं है। हाउएवर इन सीए और एमबी और पीजीडीएम इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। फ्रेशर सीए या फिर फ्रेशर एमबीए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इनके लिए, इन दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए फाइनल ईयर में अपीयर अगर अभी आप कर रहे हैं देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, आई होप देयर आर नो कंफ्यूजन्स। So as I already told you, the experience is required only for two categories of people, category number 1 and 2. ठीक है, अब कितना एक्सपीरियंस चाहिए और कहाँ एक्सपीरियंस चाहिए वो मैं बता देता हूँ। एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और दिस एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स इज excluding of the probation period. For experience my dear friends, they never count the probation period. ठीक है, प्रोबेशन हटा के 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज में होना चाहिए? इन क्रेडिट डिस्पेंसेशन in the areas of MSMEs or corporate and lending to trading and small commercial loan etc. ठीक है, इन एरियाज में आपका बिजनेस होना चाहिए, सॉरी एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड दैट टू एज अ परमानेंट ऑफिसर। ठीक है, लिखा हुआ है ऑफिसर परमानेंट। परमानेंट मतलब प्रोबेशन आपका कंप्लीट हो गया है उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम लगेगा। ठीक है, परमानेंट बोला है। और जब तक आप प्रोबेशन में होते हैं तब तक यू आर नॉट परमानेंट, राइट, विच मीन्स the probation period will not be counted as your experience. All right, and the experience will only be counted in credit dispensation in the areas of MSME or corporate and lending to trading and small commercial loan etc. अब इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे हाउसिंग लोन, कार लोन और बाकी जो उल्टे सीधे के लोन्स के अगर आपको एक्सपीरियंस है देन इट विल नॉट बी काउंटेड। ठीक है, और कहाँ पे चलेगा एक्सपीरियंस? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एग्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, नैफेड एंड सिडबी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक which are mentioned in this schedule, second schedule of the RBI Act of 1934, and any NBFCs registered with RBI. ठीक है, इनमें से किसी भी जगह आप काम करते हैं और आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है एज एन परमानेंट ऑफिसर, एक्सक्लूसिव ऑफ द प्रोबेशन पीरियड, in credit dispensation in the areas of MSMEs or corporate and lending to trade and small commercial loans, then you are eligible. ठीक है, और ये एक्सपीरियंस केवल इन दो कैटेगरी के लोगों के लिए चाहिए, सीए और एमबीए के लिए नहीं चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाद किसी ने डाउट पूछा सेम तो बेटा देख लेना। अच्छा, इसमें एक चीज और है, 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, राइट। तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपका कंबाइंड चलेगा। मान लेते हैं कि आपने 1 साल एग्जिम बैंक में काम किया हुआ है, 6 महीने आपने किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, लेट्स से आपने एसबीआई में काम किया हुआ है 6 महीने के लिए, और 6 महीने के लिए आपने किसी एनबीएफसी में काम किया है, तो कंबाइंड कितना हो गया? कंबाइंड 2 साल का हो गया। सो दिस कंबाइंड एक्सपीरियंस विल आल्सो वर्क। ठीक है, कंबाइंड एक्सपीरियंस एट सीरियल नंबर ए बी एंड सी अबव ऑफ 2 years आर एलिजिबल टू अप्लाई। एबीसी मतलब ये और ये, इनमें से अगर आपका कंबाइंड एक्सपीरियंस भी है 2 साल का देन ऑल्सो इट विल वर्क। ऑलराइट, ठीक है। इसके अलावा एक तो ये हो गया एक्सपीरियंस, ठीक है, इसके अलावा मतलब ये या फिर ये, ठीक है, ये भी चलेगा, ये और है दोनों के बीच में। ठीक है, अब इनमें भी और लगा हुआ है भाई, यहाँ पे और है। 2 साल आपके इसमें है तो भी चलेगा, इसमें है तो भी चलेगा, या फिर इसमें है तो भी चलेगा, राइट। और या फिर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस किसी ऐसी एंटिटी में है दैट इज डीलिंग इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मर्चेंट बैंकिंग रजिस्टर्ड विद सेबी, एंटिटीज डीलिंग इन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स रजिस्टर्ड विद सेबी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई, सब्सिडरी ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक विच आर डीलिंग इन एमएसएमई सेगमेंट, राइट। तो इनमें से कहीं पे भी आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, एंड दैट टू इन द कोर फंक्शनिंग। कोर फंक्शनिंग का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या मर्चेंट बैंकिंग में आप काम कर रहे हैं तो आप कोर फंक्शनिंग का पार्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप वहां पे फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हो, ठीक है, देन यू आर नॉट एलिजिबल।
ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपको आनी चाहिए, मर्चेंट बैंकिंग आपको आनी चाहिए. Similarly, if you are working in any alternative investment fund registered with SEBI, then you must not be working in the admin department or the HR department. You must be working in the core area, that is in the alternate investment fund area. ठीक है ना, कोर एरिया में काम होना चाहिए, कोर एरिया का एक्सपीरियंस चाहिए. एडमिन, एचआर और कैंटीन वाले और इन सब का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा. ठीक है. अच्छा, ये एक चीज और है, एक तरीके के लोग और एलिजिबल है, project management, which means you have any kind of project management experience of administration and implementation or projects or schemes of national importance with consultancy firms. मान लेते हैं कि आप किसी कंसल्टेंसी फर्म में काम करते हैं, लेट्स से डिलॉयट में आप काम करते हैं. ठीक है, डिलॉयट में काम कर रहे हैं एंड ड्यूरिंग योर एक्सपीरियंस एज अ कंसल्टेंट इन डिलॉयट you have implemented the projects or schemes of the national importance. ठीक है, and there is a need of experience of 10 years and more. ठीक है, 10 साल से ज्यादा का आपको एक्सपीरियंस चाहिए. ओनली देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. ये वाला तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारे लोगों का होगा, बहुत एक आधा कोई निकल के आएगा जिनको ये वाला एक्सपीरियंस होगा किसी बड़ी नेशनल लेवल की कंसल्टेंसी फर्म में, more than 10 years of experience, and that experience must be in the implementation of the schemes or project of the national importance. ठीक है, and of course national importance का मतलब है, here we are talking about the government projects only, right? We are talking about the government projects only. All right, I hope my dear friends the eligibility for grade A is clear. I hope there are no doubts. अब आते हैं ग्रेड बी के ऊपर. ग्रेड बी में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो दो ही कैटेगरी के लोग हैं, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स फॉर यूआर, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, right? However, this percentage is relaxed for SC, ST and PWBD and they need 50%. ठीक है, या फिर और है ये, और या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 55% marks for UR, OBC and EWS, and passing marks is required only for SC, ST and PWBD candidates. ठीक है, क्लियर है. और इनमें से कोई एक ही चाहिए, दोनों नहीं चाहिए. अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% है देन यू आर एलिजिबल, और अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. ठीक है, दोनों में से कोई एक है तो भी चलेगा. और एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन चलेगा. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि किसी भी डिसिप्लिन का तो इन्होंने बोल दिया, लेकिन एक्सपीरियंस उन्होंने बहुत अच्छा खासा मांगा हुआ है. एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पे इन्होंने. एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ परमानेंट ऑफिसर फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन एक्सक्लूडिंग ऑफ द प्रोबेशन पीरियड, एक्सक्लूडिंग ऑफ द प्रोबेशन पीरियड. प्रोबेशन पीरियड नहीं चलेगा. तो मतलब 2 साल का अगर प्रोबेशन है तो 5 साल एक्सपीरियंस, यानी कि 7 साल का टोटल हो गया आपका वर्क. ठीक है, एज एन परमानेंट ऑफिसर इन आरबीआई, सेबी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एग्जिम, नाबार्ड, एनएचबी, नैफेड एंड सिडबी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद सेबी, विद आरबीआई, राइट? इनमें से किसी में भी अगर एक्सपीरियंस है 5 साल का, किसी एक में भी अगर एक्सपीरियंस है 5 साल का, देन यू आर एलिजिबल. ठीक है, इसमें बहुत सारे ये वाले कैटेगरी के जो लोग हैं बहुत सारे आ जाएंगे, बैंक वाले. ठीक है, सो यू गाइज मस्ट अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन. एंड अगेन यहाँ पे भी कंबाइंड एक्सपीरियंस चलेगा. मतलब अगर इन सब में मिला के भी अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, मान लेते हैं आपने 2 साल आरबीआई में काम किया है, 1 साल एग्जिम बैंक में काम किया है, 2 साल किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में काम किया है, तो ये चलेगा. 5 साल कंबाइंड एक्सपीरियंस चलेगा इन ए बी सी एंड डी. ठीक है, and last but not the least, the desirable experience is the जैब एंड कैब एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय IIBF. ठीक है, ये मेरे ख्याल से जितने भी बैंकर्स काम कर रहे हैं जिनको भी 5 साल का एक्सपीरियंस है उनका तो ये ऑब्वियसली क्लियर होगा ही होगा. आई हैव नो डाउट अबाउट इट. ठीक है जी, सो दिस वाज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माय डियर फ्रेंड्स ऑफ सिडबी ग्रेड ए एंड ग्रेड बी. आई होप देयर आर नो कंफ्यूजन्स नाउ. स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, और देखो मैंने एक एक वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है, इसके अलावा अपने आप को जबरदस्ती एलिजिबल कराने के लिए जरूरत नहीं है. जो उन्होंने बोला है वही लोग एलिजिबल है, उसके अलावा एलिजिबल नहीं है. Still, if you have any confusion, my dear friends, please feel free to ask me in the comment section. I will definitely reply to each and every comment. Thank you very much. Goodbye. Take care and God bless.